آداب ناظرین JKCS مجھ تہد خیر مقدم بہ سید قاسم کاشانی قسم خبرن ہند بلٹن حاضر گو ترو اچن خاص خبرن پہ اخ نظر SMC طرف سری نگر شہر کس کرن نگر علاقہ مز 4 غیر قانونی عمارت سیل ایمپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہند چناو 16 نومبر منعقد کرنے تاہم آئی آز کاغذات نامزدگی برنے ورمل ضلع میں شہید مقبول ڈے کس سلسلس مز تقریب تو سری نگر لیہ قومی وتہ پہ آز اکس حادثس دوران اخ نوجوان مارت تو دویم 4 زخمی ون پیش خبرن ہند تفصیل سری نگر میونسپل کارپوریشن طرف یہ ناجائز تعمیرات ہٹاؤن مہم جاری ہے تتہ کر آز کارپوریشن سری نگر کس کرن نگر علاقہ مز وارڈ نمبر 22 مز غیر قانونی طور بنانے آمت 4 عمارت سیل ات دوران انکریجمنٹ آفیسر تہ موجود یم 4 عمارت غیر قانونی طور کھڑا کرنا آمت یل زن عمارت بناون والو مالکو میونسپل کارپوریشن طرف کھانا تہ اجازت نامہ حاصل کورمت کولنگام علاقہ مز سرکاری زمین پہ غیر قانونی طور بنانے آمتس مکانس پہ سماجی کارکن شاہد بلال بٹ انتظامیہ پہ ناراض لبنہ تمو کر ات دوران ضلع انتظامیہ اپیل زی یہ مکان گھِ گراؤن یون تمو ون سرکاری زمین پہ ناجائز طور قبضہ کرن چھن تمن قبول تمو ون میڈیا نمائندن ست کت کران مزید جس کا خطرہ نمبر 406 وہ شاملہ کی دے اس پر میں نے کچھ کنسٹرکشن دیکھی اسی وقت میں نے گردوار صاحب کو فون کیا تھا کہ میں نے اس کو بولا یہاں ایلیگل کنسٹرکشن ہو رہی تھی فلانی خطرہ نمبر میں لیکن اس کے بعد اس نے ترنت کارروائی کر کے پٹواری صاحب کو وہاں پہ بلایا پٹواری صاحب اعجاز احمد وہ جائے موقع پر آیا اور عاشق صاحب انہوں نے اس وقت جو لینڈ دیکھی تھی وہ بالکل گاس چرائی میں جو اس وقت کنسٹرکشن ہو رہی تھی لیکن فوری طور انہوں نے ایکشن لیا ایکشن کے بعد تحصیلدار ہندوارہ نائب صاحب دونوں وہاں سپورٹ پہ گئے تھے لیکن میرا سوال ہے اس وقت اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن سے اس وقت اگر کہیں جگہ پہ آپ کا کروڑوں روپے کی جو آپ کی کنسٹرکشن جو آپ کی لینڈ ویلیویشن ہے اگر ایک غریب آدمی اس وقت اگر اس کو 2 یا 3 مرلے کی لینڈ ضرورت ہوتی ہے جو بندہ رسوخ والا ہو جس گھر میں انکم جن کی انکم 5 لاکھ یا 6 لاکھ سے زیادہ ہے جب وہ گورنمنٹ ویلیویشن لینڈ اپنے پرسنل یوز کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک بیچارہ عام غریب اس کے لیے گورنمنٹ کے لا ہے جو ہائی اپروچ والے پرسنالٹیز ہیں ان کے لیے میں اس وقت جو پریزنٹ ہماری جو تحصیل ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اس پہ اچھا رول نبھایا میری جو اس وقت جو گزارش ہے وہ اس پراپرٹی کو اگر وہ انلیگل ہے ایز پر ڈاکومنٹ وہ انلیگل ہے اگر ان کے مطابق وہ انلیگل ہے مہربانی کر کے اس کو ڈیمالش کریں کیونکہ اس وقت یہ ہماری پراپرٹی ہے ہماری قوم کی پراپرٹی ہے اگر اس وقت ایک بڑا رسوخ پر ہوتا جس میں ایک سکول بھی بن گیا ان کا آلریڈی ایک مکان بنا ہوا اس پہ لیکن جو نئی کنسٹرکشن اس وقت ہو رہی تھی میرا سوال ہے اس وقت پریزنٹ ایڈمنسٹریشن سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور تحصیل ایڈمنسٹریشن سے اگر اس میں وہ جو خطرہ نمبر جو میں دے رہا ہوں 605 شاملاتی دے اس میں اس وقت کنسٹرکشن چل رہی ہے لیکن آج پریزنٹ ڈیٹ پر تحصیل ایڈمنسٹریشن نے اس کو روک لگائی لیکن میرا مطالبہ تو اس کو ڈیمالش کرنا ایمپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہند رفیق احمد میرن تو شبیر احمد لونگون آز ایمپلائی چناون ہند باپت سلک فیکٹری سری نگر کاغذات نامزدگی داخل کرمت تہ پاؤ یاد زِ تنظیم صدر سند باپت چناو کرناوان چناو یم رتن 16 تاریخ منعقد کرنے تاہم ات دوران رفیق احمد میر سند ون سہ ملازمن ہزن کامین مز بُھ انہ باپت چناو لڑان یل زن تمو وون زِ تم امہ برو ٹیچرس فورمک صدر ژارنہ آمت تمو وون زِ ون تم بیٚیہِ اکہِ پھر پن قسمت آزماوان امپلائی جوائنٹ محمد رفیق راتھر میں چیئرمین ہوں جموں کشمیر ٹیچرز فورم کا آپ کو معلوم ہے کہ امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہاں پر ایک ملازمین کی ایک نمائندہ تنظیم ہے جو ریاست کے 4.5 ملازمین کی ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے پچھلے کئی ماہ سے ہمیں الیکشن کا سلسلہ چل رہا تھا لیکن الحمدللہ کچھ دن پہلے باضابطہ الیکشن کمیشن ترتیب دیا گیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ 16 کو غالباً نومبر کو الیکشن ہوں گے امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر کے عہدے کے لیے پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے اس سلسلے میں آج آخری تاریخ تھی آج فارم بھرنے کی تو میں نے بحیثیت کینڈیڈیٹ ایک فارم بھرا ہے اور یہاں پر پریزیڈنٹ شپ کے لیے اور میں بھی دعوے دار ہوں
2 महीनों की बात नहीं है। आपको पता है कि मैं फील्ड में हूँ 92 से। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी में मैंने काम किया है, टीचर्स फोरम में बहसीत जिला सदर काम किया है, बहसीत जनरल सेक्रेटरी काम किया है 10 साल तक। तो ट्रेड यूनियन में पिछले तकरीबन 20 साल से मैं रहा हूँ, और इसके लिए तो मेहनत ही रही है। जितने भी पे कमीशन आपके हुए, 5th पे कमीशन है, 6th पे कमीशन है, 7th पे कमीशन है, आपको मालूम है कि हमने कई बार जेल जा चुके हैं, और मुझे नहीं याद कि कोई जेल यहाँ पर होगा, कोई थाना यहाँ पर होगा जहाँ हमें कैद नहीं किया गया। तो इसलिए मुलाजमीन के साथ कोई नया से तारुफ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जानते हैं, और मेरे कंट्रीब्यूशन को भी वो जानते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का जो इलेक्शन है, ये विद इन हाउस है, घर का इलेक्शन है। तो किसी भी सूरत में इसको इस तरह का इलेक्शन ना लिया जाए कि खुदा न खास्ता कोई बिटरनेस कायम हो। मैं सारे मुलाजमीन से गुजारिश करूँगा, जितनी भी इकाइयाँ हैं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी में, 38 हैं शायद, इस इलेक्शन को डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए इसको उसी अंदाज से ले लें, और इसको एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी को जितना भी मुमकिन हो उसको मजबूत से मजबूत किया जाए। अपनी पार्टी सीनियर रहनुमा नूर मोहम्मद शेखन वोनमुत योदवे गुपकार लीडर रियासतस पनुन दर्जे वापस अन्नावन तिम तथ खैर मकदम करान। तिमो वोन तिम तिमन नश अलहदी या मुख्तलिफ योदवे तिम कशरन लूकन मकसद बापत कथ करन, तिम करन प्रथ विज तिहज हमायत। तिमो वोन तिम निन प्रथ चुनावन मज हिस्से योदवे सियासत रच आसे। गुपकार डिक्लेरेशन है, तो आज जो उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, ये हर एक कश्मीरी चाहता है, अपनी पार्टी भी यही चाहता है। वो एक किस्म से एक तरीके से अपनी राय रखते हैं, हम दूसरी तरीके से अपनी राय रखते हैं। इसलिए अगर वो इसमें कामयाब हो जाएंगे तो सब खुश होंगे, इसमें हम भी खुश हैं। इसमें तो हम भी यही चाहते हैं। कौन कश्मीरी ये नहीं चाहता? तो हमें वो अपनी जो पोजीशन है वो वापस मिलना चाहिए, हर एक चाहता है। अलबत्ता वो अपने तरीके से कहते हैं, हम अपने तरीके से कहते हैं। मकसद तो एक ही है। पहले तो जो उस गुपकार डिक्लेरेशन के जो मतलब सरबराह बने हैं, चाहे फारूक साहब हो या महबूबा जी हो, तो इन्होंने तो अपनी पार्टी को अभी तक दावत नहीं दी। तो बाद में हमारा फैसला करना था हम क्या करेंगे, तो अभी तो उन्होंने दावत भी नहीं दी। इसीलिए हम अपने तरीके से लड़ते हैं, वो अपने तरीके से लड़ते हैं। दावत तो किसी को नहीं दी गई, किसी सब खुद ही गए। नहीं, उस वक्त तो उनको मीटिंग के लिए कॉल किया है सबों को। अभी जो गुपकार, देखिए, अगर इसमें सपोर्ट मिलेगा तो वो तो कश्मीरी लोगों की ही जीत है, हम भी उसमें खुश है, सब खुश है। अगर सपोर्ट मिलेंगे इनको तो वो हर एक के लिए फ़ायदे के लिए है। इलेक्शन प्रोसेस जो यहाँ शुरू हुई है, अभी तो फार्म भरने जा रहे हैं बहुत से इलाकों में। तो इलेक्शन तो ज़रूरी है। जो मेन सिटी में आएगा तो इसको इलेक्शन में हिस्सा लेना है। बाकी मैं कहूँगा मैं बाइकआउट करूँगा तो मैं चोरी छुपे अपने कैंडिडेटों को उतारूँगा, मैं तो वो तो डबल स्टैंड है, वो तो धोखा है। तो ज़रूरी है यहाँ के जो ज़मीनी सतह पे जो लोग हैं इनको ज़रूरत है इस वक्त। जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी तरफ आव आज अनंतनाग जिलस मज सल्फिया दारुल उलूमस मज अकि जानकारी कैंपुक संज करने। यथ दौरान मजहबी लीडरन कोविडस मुतलक एहतियात बरतावनिच अहमियत उजागर करना आये। चुनाच वादी मज सर्दी जोरन पे अत सिलसिलस मज कोविड बापत एहतियात बरतावन जरूरी, ये जन जुमा तो बाकी जलसन मज एहतियात बरतावन बापत मजहबी लीडरन जानकारी दिन आये। अत मौकस पे वो एड्स कंट्रोल सोसाइटी डायरेक्टरन नुमाइंदन सत कथ करान। लोगों का पिछले कई महीने से देखा गया है कि लोगों ने अब एहतियात करना थोड़ा सा कम किया, वो छोड़ दिया। तो गवर्नमेंट ने, हमारे एफसी साहब श्री अटल डुल्लू जी ने हमें डायरेक्शंस दे दी कि खासकर जो मस्जिदें हैं या कोई भी रिलीजियस प्लेस है, वहाँ उनको जाके एक्सपर्ट्स को लेके खुद भी हम उनको समझाते हैं कि ये ज़रूरी कितना है, सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग ऑफ मास्क एंड हैंड हाइजीन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ये 3 जो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल पे पूरे इंतज़ामात जो लॉकडाउन के पीरियड के जो पहले ही लॉकडाउन किया था उसमें पूरा हमने अपग्रेड हॉस्पिटल्स किए ताकि वहाँ इन मरीजों को पूरा इलाज मिले। और हमारा लकीली जो हमारी मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी है वो पूरे हमारे भारत से भी, इंडिया से भी, इवन वर्ल्ड से बहुत कम है।
और जो गवर्नमेंट की तैयारियां हैं वो पूरी है। अब हम लोगों तक है कि हम इसको कैसे प्रिवेंट करें और लोगों को इससे हम खुद को बचा सकते हैं, अपने जो पड़ोसी है उसको बचा सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं। हमारी लोगों की यही गुजारिश है लोगों से कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें। फौजी तरफ आय आज वर्मल जिल किस शेरवानी हालस मज शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी सदिस यादस मज अख तकरीब मनाने तह पाओ चेतस जि मोहम्मद मकबूल शेरवानियन 1987-88 मज पाकिस्तान दहशत गर्दन सहित लड़मुत। अत सिलसिलस मज सपज आज अख तकरीब मुनाकिद। यथ दौरान कया फौजी अफसरों पन तासुरात बव। अत दौरान कोर शहीद मकबूल संदेव रिश्तेदारों फौजुक शुक्रिया। अत मौके पर वो तिमो मीडिया नुमाइंदन सहित कथ करान। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं शहीद मकबूल शेरवानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए। आज ही के दिन 1947 में शहीद मकबूल शेरवानी ने कुर्बानी दी थी, जिनको कबायलियों द्वारा बहुत बेरहमी से मारा गया था। और मकबूल शेरवानी की कुर्बानी एक मिसाल है, जिन्होंने कश्मीर में अमन के लिए अपनी ये कुर्बानी दी। मैं शुक्रगुजार हूँ जनता का जो यहाँ पर इस मौके पर आई है, और हम उम्मीद करते हैं कि मकबूल शेरवानी की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और लोग सही सीख लेंगे इससे, और बहुत ही जल्द कश्मीर में अमन पूरी तरह से कायम। अनंतनाग जिले मज कोर आज पावर महकमस मज काम करने वाले आर्जी मुलजमों अख एहतजाज दौरान मुतालबह करान जि तिहुंद कया रेतों पे पड़ा तनख्वाह गि वागुजार कर यून सती मुतालबह करान जि तिम गसन नौकरी मज मुस्तकिल करने इन। तिमो कर लेफ्टिनेंट गवर्नरस अपील जि तिम वतिन तिहंदिस दादस। अत मौके पर अकिस मुलजम सुंद वनुन। दूसरा, जो यहाँ मुलाजमों के मसाइल थे वो मैंने एस साहब से डिस्कस किए अंदर, और एस साहब ने आश्वासन दिया कि जो भी मुतालबात मुलाजमों के हैं वो हम जल्द अज जल्द वहाँ निकालते हैं या उनको रेगुलर करते हैं। पीडीएल मुलाजिम यहाँ जो है उनको तनख्वाह का कुछ मसला था, वो मैंने जो उनका दीरीना मसला है, जो उनकी डीपीसी हुई है 2019 में, जनवरी 2019 में, मैं हुकाम वाला से गुजारिश करता हूँ चीफ साहब से कि उनका ऑर्डर जल्द अज जल्द इजरा करे। लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है कि वो लोड जितना हो सके काम करे, ताकि जो सरमा आने वाला है उसमें हमें बिजली अच्छी तरह से मिलेगी। एक शहरी जहूर अहमद मीरन वोनमुत तिहुंद मोल आव पापा कश्तवर सद जरिए मारन, युस तम 1999 मज हलाक करित दरियाव बुझ कोर। तिमो वोन पापा कश्तवर कतिल यम तसुन मोल मोर। तिमो वोन पापा कश्तवरिस आय आखिरी रसूम अदा करने, ताहम जहूर अहमद मीरुन मोल वुनि तो दरियाव मज अथि। तिमो कर सरकारस अपील तिम तन पन्निस मलिस आखिरी रसूम अदा। ये जो बदनामी ज़माना गवर्नमेंट गनमैन इरफान कमांडर पापा कश्तवार, उसने मेरे बाप को शहीद कर दिया 1996 में। उसकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिला क्योंकि उसने वो रिवर जहलम में फेंका है। आज 3 दिन कबल पापा कश्तवारी का मौत हुआ है, तो उसको पांपोर में भी उसको जगह नहीं मिला, ना तो उसको कश्तवार में जगह मिला। मगर बांडीपुर जो अजस हैं, हाल मती बांडीपुरा जिसको कहता है, कि उन लोगों ने उसको जगह दिया, रातों रात उसको दफन किया गया, और एसटीएफ और टास्क फोर्स साथ था, तो उसी के तहत उसको दफन किया गया। मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसको दफन किया तो मेरा बाप कहाँ है? मेरे बाप की डेड बॉडी भी मिलना चाहिए। 156 कब्रों को मैंने रिकमेंडेशन करवाया स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, मगर आज तक तो गवर्नमेंट ने कोई जवाब भी नहीं भरा, जबकि हाई कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है। मेरा बाप भी अगर होता था मैं भी उसको दफन करता था। इसका हक बनता है कि सरकार को कि इसको अच्छी तरीके से इसको दफन किया, मेरा भी हक बनता है। मैं अपने बाप को सुपर्द खा के उठाकर जहाँ भी जो गुमनाम कब्रें हैं उनसे निकालूंगा। जिस कब्र में होगा वो गवर्नमेंट को पता लगाएगी कि किस कब्र में है, तो मैं उसको अपने आबाई गाँव में दफन करूँगा। पत्मे हफ्तो डिविजनल कमिश्नरन हुक्मनामा जारी कोर्मुत जि पुज हेकन 460 रुपये माज 1 किलो कनित, तो योदवे कह अमिच खिलाफ वर्जी करान वुछान यी तस खिलाफ सपदि FIR दर्ज। अत सिलसिलस में एम्प्लॉय सदर तो सीनियर अफसर CAPD रियाज अहमद सोफियन वोनमुत जि सरकारी हुक्मस तहत पुजन तामील करुन। तिमो वोन योदवे कह अत दौरान खिलाफ वर्जी कर तस पाने बुथ लगुन। रियाज अहमदन वोन जि सोन टीम बाजर नेरान तो चेकिंग करान। देखिए, रेट फिक्स करना ये डायरेक्टर फूड सप्लाईज़ का काम है। चूँकि डिविजनल कमिश्नर साहब की सदारत में मीटिंग हुई, उसमें सरकारी तौर पर जो टीम होती हैं जिसमें बहुत से महकमों के जो
टेक्निकल्स होते हैं, जिसमें शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर साहब होते हैं, डायरेक्टर फूड सप्लाईज होते हैं, और भी बाकी डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं उसमें, जो ये रेट डिसाइड करते हैं। और उसमें जो हमारे मटन के होलसेल डीलर्स और रिटेल डीलर्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके मेंबर्स को भी उस मीटिंग में बुलाया जाता है, और फिर मिलजुल के एक रेट मुकर्रर होती है। और जहाँ तक तकरीबन एक हफ़्ते पहले जो डिविजनल कमिश्नर साहब ने 480 रुपया मटन का रिटेल रेट जो अजरा किया है, तो जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है उसमें डीलर्स, जो मटन डीलर्स के होलसेल डीलर और रिटेल डीलर्स दोनों उसमें शामिल रहे हैं, और बाकी जो अमला है, सरकारी अमला, जो सरकारी अफसरान थे, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। तो उसके बाद रेट मुकर्रर हुई। तो दूसरी जानिब जब एक दो दिन के बाद, जैसा आपने अभी अपने एक सवाल में कहा कि जो बोचर्स है वो इस रेट को मुनासिब नहीं समझते हैं, बल्कि उनका ये कहना है कि ये रेट सही नहीं है, तो अगर ये पहले ही मीटिंग में शामिल थे तो फिर मीटिंग में उनको ज़रूर मौका दिया गया होगा कि वो भी अपनी बात रखे। बहरहाल हम सरकारी मुलाजिम हैं, और सरकार की तरफ से जो भी रेट अजरा की जाती है, जो भी मुकर्रर की जाती है, उस पे अमल दरामद करना हमारा फ़र्ज़ है। और हमारी टीम इस वक्त जगह जगह जा रही है, हर इलाके में जा रही है, और इस रेट को पाबंदी के साथ और सख्ती के साथ लागू करने का हुक्म हमारी टीम को दिया गया है ऑलरेडी। और अभी तक तकरीबन 10-15 FIR श्रीनगर में हुए हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी जितने भी हमारे बोचर्स हैं उनके ख़िलाफ़ FIR हो रहे हैं जो इस रेट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। रामबन जिले किस पोगल परिस्तान इलाकस मज कोर आज सोशल वेलफेयर महकमन अकि जानकारी कैंपुक सांज। सोशल वेलफेयर अफसर मुसविर गिरियन कर लोक मुख्तलिफ स्कीमों नश ज़ानियाब, येल जन तकरीबी मज पंच तो सरपंच तक मौजूद। अमे अलाव न्यू वारियस तादादस मज लूको तकरीब मज हिस्से। कैंपस मज आव ओल्ड एज पेंशनस मुतलक लूकन वन। लूको कर अमे कैंपुक तारीफ तो वोनुक से अमे कैंप सत वोत गरीब लूकन तम वारिया फ़ायदे। तो उनके लिए डेथ ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो इशू की जाती है मेडिकल बोर्ड से, सीएमओ साहब इशू करते हैं कंसर्न रामबन से, और आजकल वो ऑनलाइन भी इशू होती है। उसमें जो क्राइटेरिया रहता है डिसेबिलिटी परसेंटेज का, वो रहता है मिनिमम 40%। 40% वाला अप्लाई कर सकता है, 30% वाला नहीं कर सकता है। और बाकी आप देख रहे हैं जैसे हमारी इस वक्त ये मुहिम जारी है, हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह उसके बाद ये ऑनलाइन भी होंगे। और इनके और बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं भी जाता हूँ 70 से 60% काम हो चुका है। अभी हम नील का दौरा करके आए हैं, उससे पहले मंगित, महू, अपरिस्तान है, ये सेनापति है जो इस ब्लॉक का पड़ता है, फागमुला है, इंशाल्लाह वो भी हम कवर करेंगे। तो बुनियादी मकसद ये है कि जो ये सरकारी जो ये सेंटर की या क्या नाम है हमारी जो यूटी सरकार की जो ये स्कीमें, लोग इससे मुस्तफीद हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। और ये है भी हमारा डिपार्टमेंट समाजी बहबूद भलाई का, ये तो है ही एक नेक काम। तो इंशाल्लाह फायर एंड एमरजेंसी उम्मीदवारन हुंद एहतजाज रूद आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज जारी। यह मुतालबह करान तिहंद इम्तहानी पर्चन मज धांधली सपजम तो महकम के एहलकारों इम्तहानी पर्चे गड़े कनमत। तिमो वोन अत सिलसिलस मज गि पूरी तहकीकात कर युथ नाकाम करना आमतन उम्मीदवारन इंसाफ फराहम सपदे। 2013 की नोटिफिकेशन के तहत हमने इसमें फार्म भरा था। तो 2 बार की अगर हम बात करें, पिछले 2 बार इस पे स्टे लग चुका है करप्शन की वजह से। और तीसरी मरतबा हमको बहुत ज़्यादा आशाएं थी कि इस बार धांधली नहीं होंगी इस लिस्ट में। लेकिन 3 अक्टूबर को जो ही फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट ने इस लिस्ट को मंजर आम पर लाया, तो जो ही हमने इस लिस्ट को देखा तो लिस्ट पूरा फ्रॉड से भरा हुआ था। लिस्ट में जो आज तक जो करप्शन अब तक हुई है, इसमें सबको इसने पीछे छोड़ा है। 100% इसमें करप्शन हुआ है। अगर हम बात करेंगे लिस्ट की, इस लिस्ट में ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है जो 8th पास हैं, 10th पास हैं, जिन्होंने आज से 6 साल 7 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन फिर भी वो लिस्ट में मौजूद हैं। अगर हमारी बात करें, मैं खुद MA फिलासफी हूँ, BEd हूँ, और बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं उनके पास हाई क्वालिफिकेशन है, उनके पास अच्छी जो क्वालिफिकेशन है, उनको लिस्ट में ड्रॉप किया गया है। अब हमारी गुजारिश यही है LG साहब से हमें खासकर
अपील है। पिछले 2 महीनों से हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। लगातार यहाँ पे गवर्नर के तरफ से वादे किए गए थे कि करप्शन को ख़त्म किया जाएगा, यूटी अब बनी है, अब करप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें, 2 महीने से हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आ रहा है। गवर्नर साहब इसमें इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। हमारी गुजारिश ये है कि इस लिस्ट को सबसे पहले क्वाश किया जाए, क्योंकि लिस्ट जो पूरा फ्रॉड से भरा हुआ है, इसमें हमारे पास सारे पुख्ते सबूत मौजूद हैं। ग्रीवेंस सेल में भी हमने, जो ग्रीवेंस सेल है फायर एंड इमरजेंसी में, उसमें भी हमने सारे ग्रीवेंस रखे थे, लेकिन फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है उन्होंने अब तक हमारे ग्रीवेंस का कोई वहाँ से जवाब नहीं दिया है। श्रीनगर लेह कौमी वत पे सपुद अकिस हादस दौरान अख वुहवूर जवान मार तो दोयम 4 नफर तमि विज जख्मी येलि तिम हाजी कबर सोन मर्गे निश गाड़ी मन सवार सिंध नालस में दुल सपद वन ड्राइवर सद कबू नश गई गाड़ी नबर तो यह सदे नालस मज यम किन अख नफर मौकसी पे मार तो दोयम 4 जख्मी सपद मार गमतिस नफर सज पहचान सुहेल अहमद भट्ट वलद अब्दुलरहीम भट्ट सकिन रैल गुंड सद रंग करना आमज यस वंस 20 वरी वन यह खबर बूझते वो जाय वारदात पे पुलिस तो जख्मी वातन हस्पताल ये पे 2 नफर SDH कंगन मुंतकिल करना आय। नाज़रीन खबरनामा वातन ब्रो खास खास खबर बे SMC तरफ आज श्रीनगर शहर किस करन नगर इलाकस में 4 गैर कानूनी इमारत सील। एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी हुन चुनाव 18 नवंबर मुनक़िद करने, ताहम आय आज कागजात नामजदगी भरने। वर्मल जिलस में शहीद मकबूल डे के सिलसिलस में तकरीब। तो श्रीनगर लेह कौमी वत पे आज अकिस हादस दौरान अख नौजवान मार तो दोयम 4 जख्मी।